class 9th. The question says, show that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. See, whenever a figure is not given to you, the first thing that you have to do is draw the figure and explain the figure. So here actually ABCD is a square in which the diagonals AC and BD intersect at a point O. So that's what I have written here. ABCD is a square in which diagonal AC and BD intersect at O. So figure is not given, you have to explain the figure. Now to prove, there are three parts that you have to prove. What is that you have to prove? AC is equal to BD because diagonals are equal. Second part is what? They are bisecting. Bisecting means this part is equal to this part and this part equal to this part, that is AO equal to OC and OB equal to OD. And again you have to prove that this is 90, this is 90, this is 90. So actually what I have done is I have taken three figures to make the things clear. एग्जाम में तीन फिगर की जरूरत नहीं है, एक फिगर से काम चल जाएगा. तो यहाँ फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करेंगे. फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है हमको? डायगोनल्स आर इक्वल. तो अगर डायगोनल्स आर इक्वल हमको प्रूव करना है तो हमको वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा जहां पर डायगोनल्स आते हैं. कहां पर डायगोनल्स आता है? देखिए AC डायगोनल एक है, BD एक डायगोनल है, तो ये डायगोनल आने वाला ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा. तो डायगोनल कहां पर आता है? देखिए आप, AC यहाँ पर आता है, BD यहाँ पर आता है, तो हम ट्रायंगल लेंगे ADC और BCD. We will select a triangle where diagonal is a part of it. So what I'll do is in triangle ADC and triangle BCD, in triangle ADC and triangle BDC, I will take AD equal to BC, and the reason is all sides of squares are equal. All sides of squares are equal. First reason. So I have selected a triangle where diagonals are one of the parts. So this side equal to this side and this side is common to both. So what I can say here, DC equal to DC. Here second point, because common sides. So what I have done is this side equal to this side is common to both, and now you can say here, since it is a square, I can say that this angle equal to this angle. Okay, so what I can say here is angle ADC is equal to angle BCD is equal to 90 degree. This is my equation number 3. And why? Because all angles of square are equal to 90 degree. All angles of square are 90 degree. So what I have done, try to understand here children. I have taken this side equal to this side is common, this is 90 degree. So two sides of one triangle and one including angle are equal. So two sides of one triangle and one including angle are equal means triangles are congruent by SAS congruency rule. So what I can say here is triangle ADC is congruent to triangle BCD, and this is by SAS rule. So children, if two triangles are congruent, then by CPCT I can say that AC equal to BD. So the first part is over. What is it? AC equal to BD I have proved. What did I do for that? I have selected two triangles where diagonals are a part of it. Diagonal जिसका part है वैसे दो triangles को मैंने select किया. तो यहाँ पर क्या हो गया? AC BD के बराबर हो गया. तो AC BD के बराबर हो गया. So this is the first part. I'll call it as equation number A. Now in the examination I had told you that you need not draw three figures. तीन फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फिगर में काम हो जाएगा.
मगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग से 3 फिगर बना के आपको शेडिंग करके बता रहा हूँ कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। यहाँ पर मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ऐसे 2 ट्रायंगल लिए जहाँ पर AC और BD जो है वो पार्ट हो रहा है। अब मुझे डायगोनल्स आर इक्वल बताना है, या तो मैं ये 2 ट्रायंगल ले सकता हूँ या तो मैं ये 2 ट्रायंगल ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई डू इज आई टेक दिस ट्रायंगल, दिस इज COD and this is AOB. Now you see here, what I can do is in triangle COD, in triangle COD and triangle AOB and triangle AOB. Now what is happening here, let us try to see. See here, these 2 sides are equal because all sides of a square are equal. So what I will say here is side AB equal to side CD. Reason है sides of a square, sides of a square, sides of a square. उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। बच्चों स्क्वायर्स के दोनों साइड्स पैरेलल होते हैं और ये अल्टरनेट एंगल्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी क्या हो गया, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। सिमिलरली बच्चों अगर आप चाहो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ले सकते हो या चाहो तो इसको इक्वल आप बता सकते हो, तो चॉइस इज योर्स। तो हम मान लीजिए इसको लेते हैं, अगर इफ आई डिसाइड टू टेक दिस एंगल, विच वन, दिस वन, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD. This is alternate angles, alternate interior angles, and this is vertically opposite angles. And so children, what I have proved is 2 angles, one side non-including side, 2 angles, one non-including side of these 2 triangles are equal, and if that is the case then triangles are congruent. सिमिलरली तो क्या हो गया, ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD and rule is AAS. Now you may say, sir, if we take these 2 angles then what will happen, sir? Nothing will happen. You can say that yes, these 2 triangles are congruent by ASA rule. ASA, 2 angles and 1 including side. So the choice is yours. Choice मैं आपको दे रहा हूँ, मगर मैं दोनों नहीं करूँगा, मैं क्लासरूम में से केवल एक ही करूँगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये दो एंगल्स इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो 2 एंगल्स और एक नॉन इंक्लूडिंग साइड को इक्वल मैंने बता दिया। तो ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों तो बात सिंपल है, इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड इक्वल होगा और फिर इसके सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड इक्वल होगा। यानी कौन सा इक्वल होगा, थोड़ा ध्यान देना आप। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज AO इक्वल टू OC और उसी तरह से OB इक्वल टू OD। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, दैट इज डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड, डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड। अब थर्ड पॉइंट मुझे लेना है। देखिए फर्स्ट में मैंने क्या किया, बड़े वाले 2 ट्रायंगल्स लिए, सेकंड में मैंने सामने वाले 2 ट्रायंगल्स लिए, थर्ड में मैं एडजेसेंट ट्रायंगल्स ले रहा हूं। इससे कैसे प्रूव होगा सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू द पॉइंट।
द फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए आप ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर्स के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इसीलिए दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, फर्स्ट पॉइंट, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अभी हमने प्रूव किया है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, जस्ट नाउ आई हैव प्रूव्ड, और दिस साइड इज कॉमन टू बोथ, तो यानी क्या हो गया, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो हमारा पॉइंट क्या हो रहा है यहां पर, व्हाट आई कैन से हियर इज, इन ट्रायंगल DOC, in triangle DOC and triangle BOC, लेट मी टेल यू इन द एग्जामिनेशन, आप तीन फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वन फिगर के अंदर ही आप सब कुछ कर सकते हो, बट टू मेक द थिंग्स क्लियर आई एम डूइंग इट हियर। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज DC इक्वल टू A, DC इक्वल टू BC, पॉइंट नंबर 1, या फिर यू कैन कॉल इट एज A। व्हाट आई कैन से हियर इज all sides of square are equal, all sides of square are equal, all sides of square are equal. Second, what is it, OB equal to OC, OB equal to OD, या OD equal to OB I can say. This I'll call it as equation B. It has come from here. If at all you want, you can say here alpha, and this you can say beta. So from where it has come? From beta it has come. आप कुछ भी उसको सिंबल दे सकते हो, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, जो चाहे आप दे सकते हो, या फिर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, या फिर स्मॉल 1 या फिर 1 2 3 4 भी स्मॉल, जैसे डॉट्स में आप दे सकते हो, रोमन में भी। तो what I have proved is this equal to this equal to this, and this side is common to both. What is it? OC equal to OC. ये मेरा इक्वेशन नंबर C है, बिकॉज कॉमन, क्या है ये, कॉमन साइड है। तो आप यहां पर क्या कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन ABC ट्रायंगल COD is congruent to triangle COD is congruent to triangle COB by yes congruency rule। और बच्चों अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे CPCT से, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर है। और अगर लीनियर पेयर के अंदर अगर दोनों एंगल इक्वल है तो हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो बात खत्म। यानी बाइसेक्ट भी हो रहा है, परपेंडिकुलर भी है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से हियर इज एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD। ये कहाँ से आया, CPCTC। तो अभी क्या होगा, एंगल COD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर्स। क्या होगा, लीनियर पेयर्स, बट दे आर इक्वल। तो ये क्या होगा, COD प्लस COD इज इक्वल टू 180। तो 2COD इज इक्वल टू 180, यानी COD इज इक्वल टू 90, COD 90 हो गया। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी चारों 90 हो गए। तो व्हाट आई कैन से इज COD इज 90, COB इज 90, COB is equal to 90, and if two angles are 90, then remaining angles also you can say that here COD is 90, so AOB is 90, and BOC is 90, so AOD is also
90, यानी चारों एंगल्स 90 हो गए और चारों जो दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट हो गए. यानी व्हाट आई कैन से हियर इज, इफ यू वांट यू कैन से हियर व्हाट यू कैन से एंगल BOC is equal to angle AOD is equal to 90, और यहाँ पर एंगल COD is equal to angle AOB is equal to 90 because vertically opposite angles. So children, so far we used to tell you the property and you used to believe it. Now the time has come in class 9 standard that we have to prove the properties. तो हमने यहाँ पर कैसे प्रूव किया, पहले तो बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, इसको हमने यस से यस कॉन्ग्रुएंसी रूल लेकर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ताकि ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. बाद में हमने क्या किया, ये दो ट्रायंगल्स ले लिया, अल्टरनेटिंग एंगल्स इक्वल है या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दो इक्वल हो गए. बाद में हमने क्या किया, ये दो साइड ले लिया, ये दो इक्वल है, ये साइड्स आर इक्वल और ये कॉमन होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. दोनों एंगल्स इक्वल है तो लीनियर पेयर की वजह से ये दोनों इक्वल है तो 90 90 हो गया, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90. सो चिल्ड्रन, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर perpendicular bisectors of each other. So this is the property that you should know it, and it is very important property. So try to understand this problem. It is very simple. कौन सा triangle लेना है, that is very important. And let me tell you once again, don't draw 3 figures. Only one single figure is sufficient. Only to make the things clear, I have drawn the 3 figures.